Okay, so what are we discussing? We are discussing mitochondria now. Mitochondria, you know, it is one of the double membrane organelles of the cell. It contains an outer membrane and an inner membrane, and there is matrix inside. Mitochondria is rod-shaped or oval structures, and energy is, you can say, produced here or generated from this particular organelle in the form of ATP. Now, what mitochondria ends up having? Mitochondria is having the main components, which the basic labels of mitochondria are that there is an outer membrane, then there is an inner membrane. The inner membrane is folded inwards into in finger-like projections called cristae, and these cristae are finger-like projections that extend into the matrix of the mitochondria. These cristae, do not confuse cristae with cisternae. Cisternae are present in the rough and smooth ER and Golgi. Cristae are present inside the mitochondria. Now, mitochondria is also having matrix. Matrix is the region where 70s ribosomes are present inside the mitochondria, as well as there is a circular DNA in the mitochondria which carry all the genes that mitochondria needs to synthesize protein. Then electron transport systems are also present along the inner membrane of the mitochondria, which helps in the synthesis of ATP. The space between the outer and the inner membrane is called as the intermembrane space. Now, how is ATP produced? You know that there's a reversible reaction that ATP can be split into ADP and PI. PI means inorganic phosphate plus energy, which is given out by the cell. PI is inorganic phosphate, and you can reverse this reaction. The energy given out by this reaction is used inside the cell for doing various functions. And if you reverse this particular process, then this reaction becomes that inorganic phosphate plus ADP combines to form ATP. Now, how this occurs, you know that when your cell is taking glucose, it undergoes a process of glycolysis. What is glycolysis? The splitting up of glucose molecule. Glucose molecule is a 6 carbon compound C6H12O6. Initial stages may it undergoes phosphorylation where it is converted to glucose bisphosphate, and then it starts to disintegrate. दो molecules of triose phosphates बनते हैं, and then eventually two molecules of pyruvate are formed. Pyruvate के अंदर क्या होंगे? 3 carbon each होंगे. In this process, two reduced NAD are made and four ATPs are produced. Since initially two ATPs were used in phosphorylation, जब हेक्सोस बिस्फॉस्फेट बना था, तो नेट गेन 2 ATP का होता है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस का मेजर एम ही क्या होता है? 6 कार्बन ग्लूकोज को स्प्लिट करके 3 कार्बन का पायरुवेट बनता है. पायरुवेट फिर क्या करता है? द पायरुवेट then loses 1 carbon dioxide and another reduced NAD is made and it turns into acetyl. Acetyl फिर together with या एसिटिक एसिड फिर क्या करता है? वो कोएंजाइम ए के साथ जाके ऐड हो जाता है into the Krebs cycle. Then Krebs cycle begins. Krebs cycle के अंदर क्या होता है? Krebs cycle में you know how Krebs cycle goes on. It is also called as the citric acid cycle. How Krebs cycle goes on? Krebs cycle की ग्लाइकोसिस का तुम्हें बेसिक पैथवे बताया हुआ. You can just go through this yourself. ये मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया उसका. ठीक है. अच्छा, यहाँ तुम्हें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. हाउ रिएक्शन सब्सटेंस प्रोड्यूस, लोकेशन क्या है, एनर्जी कितनी निकल रही है, और नीड फॉर ऑक्सीजन है या नहीं है. ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती. ग्लाइकोलिसिस कैन अकर इन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक कंडीशन. अच्छा, नाउ व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग विद पायरुविक एसिड. देखो ये पायरुविक एसिड तुम्हें यहाँ शो किया हुआ है. या पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस में बना 3 कार्बन कंपाउंड था. माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इट विल टर्न इनटू एसिटिक एसिड. इसमें से CO2 रिमूव हो गया, 1 कार्बन रिड्यूस हो गया, एक और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, रिड्यूस NAD बन गया. एसिटिक एसिड कोएंजाइम के साथ मिलेगा, एसिटाइल कोए बना लेगा. एसिटाइल कोए विल कंबाइन विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या होता है? ये तुम्हारे पास 4 कार्बन कंपाउंड पहले से होता है. कहाँ पे? तुम्हारी क्रेब्स साइकिल में, मैट्रिक्स में. 2 कार्बन कंपाउंड इससे मर्ज होगा. इट विल टर्न इनटू सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड फिर जाके आपके पास आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है. फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनाएगा. फिर सक्सिनाइल एसिड बनाएगा. एंड दैट विल सक्सिनिक एसिड में हो क्या रहा है? यू कैन सी हाउ द कार्बन्स आर बीइंग लॉस्ट. पहले 6 कार्बन कंपाउंड में से 1 कार्बन रिमूव हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया. उसके बाद फिर 5 कार्बन कंपाउंड बन गया. 5 कार्बन कंपाउंड में से एक और कार्बन रिमूव हुआ, 4 कार्बन कंपाउंड, एंड देन ATP इज प्रोड्यूस. एंड
Eventually, through various stages, oxaloacetic acid is regenerated. ठीक है, इस प्रोसेस में रिड्यूस एनएडी बनेंगे, कितने, 3 रिड्यूस एनएडी बनेंगे और 1 रिड्यूस्ड एफएडी बन रहा होगा. नाउ द होल प्रोसेस व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस, इसमें एक क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, एक एटीपी प्रोड्यूस होता है, 3 रिड्यूस एनएडी बनते हैं, एक रिड्यूस एफएडी बनता है. बट अब याद करो, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में, सिंस ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुवेट बने थे ना, 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो 2 सेपरेट क्रेब्स साइकिल होंगे. इट मीन्स दैट क्रेब्स साइकिल का मतलब क्या हुआ, इसकी प्रोडक्ट को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, विच मीन्स कि इसका मतलब एक क्रेब्स साइकिल में जो होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो बेसिकली इन फॉर 1 ग्लूकोज 6 reduced NAD are made, 2 reduced FAD are made, and 2 ATP are produced, as well as 4 carbon dioxides are exhaled. तो इस तरह क्या हो जाता है, ये तुम्हारे पास ATPs बन जाते हैं. नाउ दिस इज जस्ट ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल अकरिंग. फिर क्या तुम्हारे पास, देयर आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में देयर आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लोकेटेड. what are these electron carriers? These electron carriers, they allow reduced NAD and reduced FAD to interact with them. reduced NAD इलेक्ट्रॉन कैरियर से इंटरैक्ट करता है, अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे देता है. रिड्यूस FAD भी इलेक्ट्रॉन कैरियर से इंटरैक्ट करता है और अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे देता है. रिड्यूस्ड हाइड्रोजन कैरियर्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के अंदर किया, इट विल बी स्प्लिट इनटू H प्लस एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करेगा, विच मीन्स ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट टू लूज एनर्जी. जैसे जैसे वो अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को यूज करते हुए H प्लस आयन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स they move down the electron transport chain, they lose energy, and when they lose energy, H plus ions which are in the electron carriers initially, they are transported into the intermembrane space. तुम्हें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस की कंसंट्रेशन हाई होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में H प्लस की कंसंट्रेशन लो होती है. So what will happen, H plus ions will start to move from the intermembrane space to the matrix of the mitochondria. और ये किसके थ्रू हो रहा होगा, एटीपी सिंथेज एंजाइम के थ्रू हो रहा होगा, केमी ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा होगा. उस प्रोसेस से क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस शुरू हो जाती है. ये बेसिक आइडिया है हाउ योर बेसिकली एटीपी सिंथेसिस अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ये तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस तुम्हें दिए हुए हैं, हाउ दीज स्टेप्स आर गोइंग ऑन. यू मस्ट हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस प्रीवियसली in your previous levels as well, how oxidative phosphorylation, how these things are occurring. ये तुम्हें डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम तुम यहाँ देख लो. दिस डायग्राम इज टेलिंग यू किस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, कौन कौन से रीजन है. तुम्हारे पास कौन कौन सा रीजन आ रहा है यहाँ पे. ये जो येलो रीजन है ना, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इस जगह हाई H प्लस कंसंट्रेशन होती है. ये जो रेड रीजन है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो फोल्ड होके क्या बना लेता है, इट फोल्ड्स अप टू फॉर्म द क्रिस्टे. और ये तुम्हारे पास आउटर मेम्ब्रेन है जिसको मैंने ग्रीन बना दिया. ठीक है. और सेल के इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या होगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर यहाँ पे जो मैं पिंक कर रहा हूँ, ये सारा साइटोप्लाज्म है. ठीक है जी. और जिसको मैं डार्क ब्लू कर रहा हूँ, ये सारा क्या है, ये तुम्हारा मैट्रिक्स है. So this is how these partitions are. Now what will happen? I told you the reduced hydrogen carriers. What do they do? Reduced hydrogen carriers क्या कर सकते हैं? ये अपना हाइड्रोजन किसको देते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को दे देते हैं. जैसे रिड्यूस ये NAD आया, NAD अपना रिड्यूस NAD आया. What did it do? NADH इसने क्या किया? It gave its hydrogen to the electron carrier. इसी तरह रिड्यूस FAD भी अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे देता है. Hydrogen will be split into electron and proton. The electron will move along the electron transport chain. ये electron transport chain चलती रहेगी. Electron transport chain में when the electrons are going across, तो it will cause क्या क्या हो जाएगा, इससे तुम्हारे पास एनर्जी निकलेगी. अच्छा, वापस आओ. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव होंगे डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये मैं व्हाइट एरो से शो कर रहा हूँ बट ये नज़र नहीं आ रहा, मैं कोई और कलर यूज़ कर रहा हूँ, उससे भी नज़र नहीं आ रहा. लेट मी जस्ट फाइंड अ सूटेबल कलर फॉर दिस. ऑरेंज. ओके.
So electron moves along the electron transport chain, it keeps losing energy. इसमें से energy निकलती रहेगी, and this energy will be used to push the H plus ions in the intermembrane space. ये जो मैंने जो intermembrane space है इसमें आपके पास H plus high concentration में जमा हो जाते हैं, जो कि इस stock particle से निकल के they come down into the matrix. ATP synthase से H plus ions आएंगे, ये मैंने ये ऑरेंज में एरो तुम्हें शो कर दिया. ATP will be made in the matrix of the mitochondria. किस तरह से हो रहा है ये पूरा प्रोसेस यहाँ तुम्हें समझा दिया. This is how oxidative phosphorylation occurs. तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हो गया. यहाँ देख लो इस डायग्राम का फिगर 2.15. दिस टेल्स यू कि ग्लूकोज ग्लाइकोज में 2 एटीपी का नेट गेन था एरोबिक कंडीशंस के अंदर. जब ये सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद तुम्हारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, 34 मोर एटीपीज विल बी प्रोड्यूस्ड. तो इस तरह से 36 एटीपीज आर प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल. किस तरह? जब तुम्हारे पास एक ग्लूकोज को तुम रेस्पायर करते हो, पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर क्रेब्स साइकिल हुआ और उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन.